Hello and welcome to MPPSC Adda. I welcome you all to the today's answer writing master class. आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं एंड आज के हमारे टॉपिक्स पेपर 4 से बिलोंग कर रहे हैं. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव कवर्ड टॉपिक्स फ्रॉम द पेपर 1 हिस्ट्री सेशन एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एंड द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू प्लेटो. राइट, सो हियर यू कैन सी द पेपर 4 यूनिट 1. सो ये जो सिलेबस है ये एथिक्स का, थिंकर्स एंड द फिलोसोफर्स एंड द सोशल रिफॉर्मर्स टॉपिक है. ये टॉपिक पेपर 4 यूनिट 1 से बिलोंग करता है. वन मोर क्वेश्चन वी विल सी फ्रॉम द यूनिट 2, right, and that is related to the national interest and national security. So these kind of questions are very important for the examination, as the paper 4 is very scoring if you write it correctly, attempt it correctly, and you write according to the demand of the questions, right? So before moving forward, a little announcement regarding our year long test series, which is 50 test series for 2026. आप सभी बच्चे जो अपनी आंसर राइटिंग स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें. एंड इसमें जो इवैल्यूएशन है वो मैं पर्सनली खुद करूंगा. बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वो अभी आने वाले एग्जाम में अपियर होने वाले हैं. उनके लिए भी मैं बोलूंगा कि एक बार आप जरूर एफएलटीज एमपीपीएससी अड्डा के जरूर सॉल्व करें. आपकी प्रिपरेशन का फाइनल जो पॉलिशिंग है, फिनिशिंग है, वो 100% होगी, क्योंकि इवैल्यूएट आपकी कॉपी मैं करूंगा एंड जो भी आपकी छोटी मोटी कमियां हैं, जो डोंट्स हैं, उस पर मैं फोकस करूंगा ताकि आपकी इंटरव्यू कॉल जरूर आए. Right, so let's move ahead with the today's answer writing master class. And the first question of the day is related to what are the names of the virtues according to Plato. It's a very basic question and it belongs to the thinker section of the paper 4 unit 1, and the thinker is the Plato. We all know that the thinker Plato belongs to the Western thinkers, and he was a Greek thinker, basically Greek philosopher who was the disciple of Socrates and the master or the guru of Aristotle. So we all know that there is a hierarchy of scholars, but the question which comes in examination is mostly focused on Plato and Aristotle. Socrates से questions बहुत कम आते हैं एग्जाम्स में, लेकिन प्लेटो एरिस्टोटल से बहुत ज्यादा आते हैं. तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आप उन्हें आंसर कैसे करेंगे. रीडिंग अबाउट द थिंकर्स इज अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बट आंसरिंग क्वेश्चंस ऑन द थिंकर्स इज वेरी वेरी टफ and tricky, right? So if you learn the art and the trick of writing answers, how to hit the bullseye directly, then only you will be getting the good marks. So यहाँ पे पहले तो मैं आपको एक डायरेक्ट आंसर लिख के बता रहा हूँ, and then I will add something, add some value to it so that you understand कि कैसे हम इन क्वेश्चंस में से गेस भी कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस, राइट? So the first point, as you can see on the screen, is Plato's 4 cardinal virtues for morally good life. देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज द अल्टीमेट गोल फॉर विच दीज फिलोसोफर्स आर सजेस्टिंग यू द वर्च्यूज. और ये वर्च्यूज का सजेशन जो दिया गया है, जो उनकी लिस्ट दी गई है बाय प्लेटो और एरिस्टोटल या फिर सोक्रेटिस, वो मॉरली गुड लाइफ जीने के लिए दी गई है. सो व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? टू नो दाई सेल्फ एंड टू नो दाई सेल्फ थ्रू द हेल्प ऑफ मॉरली गुड लाइफ. And that morally good life will only be possible if you have a very good reasoning and skillful questioning, that is dialectic method, process, methodology in your complete thinking process. So your thinking should be analytical, your questions should be well asked in a proper manner, then only you will be able to lead a morally good life. The problem with the morally good life is a little bit of background I'm telling you before answering this question, that morally good life जीना बहुत मुश्किल है, जो आज के समय में भी है, तब भी मुश्किल था. बट कोई क्यों जिएगा? वाई विल एनीवन लीड अ मॉरली गुड लाइफ? बिकॉज अनटिल एंड अनलेस अगर किसी को उसमें अपनी भलाई नहीं दिखती या अपना भला यानी गुड नहीं दिखता, वो कभी भी उस पाथ को ट्रेवल नहीं करेगा. So that's what Plato, Aristotle and Socrates said, that a man must have wisdom first, or the knowledge first, which must be well reasoned based on the intellect. Then only a person will be leading life on the morally good directions. Right? So that's what the question is also asking. So what are those virtues which a person should develop so that he can lead a morally good life? So answer says wisdom, courage, temperance and justice. These are the fundamental values. अब यहां पे ये जो वैल्यूज हैं, यहां पे मैंने बोला 4 cardinal virtues. So this is the exact word which is mentioned in the complete philosophy. We read it in the complete theory and the philosophy of Plato, and as well as the Aristotle. There also 4 cardinal virtues are mentioned. So why it is called as cardinal? Because they are fundamental
so that any person can lead a morally good life, because without these virtues nothing is possible on this path, on this path of righteousness, on this path of good deeds. So while writing answers on the thinkers, you must approach the topic from the multiple dimensions. जैसे महावीर जी के बारे में हम पढ़ते हैं, तो महावीर, वर्तमान महावीर जी के बारे में अगर पढ़ते हैं तो हम स्यादवाद की थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविज्म, और थ्योरी ऑफ प्लूरलिज्म, अनेकांतवाद पढ़ते हैं. So how we can approach the reality? We can approach the reality from seven dimensions, right? Similarly, Plato के केस में भी जब भी आप virtues के बारे में पढ़ेंगे, तो if you have seen the paper of 2023-24, जो मैं insights आपको दे रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए. सॉक्रेटिस पे क्वेश्चन आया है कि वर्च्यू इज नॉलेज को एक्सप्लेन करिए 11 मार्कर में. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वर्च्यू इज नॉलेज एंड यू नीड टू एक्सप्लेन दैट इन 11 मार्कर. तो क्या क्वेश्चन आया है? वर्च्यू इज नॉलेज. जितने भी बच्चे 2025 में अपियर हो रहे हैं या 26 में अपियर होंगे, सबके लिए बहुत काम की बात है कि वर्च्यू इज नॉलेज अकॉर्डिंग टू सॉक्रेटिस. लेकिन जब क्वेश्चन प्लेटो पे आता है तो क्वेश्चन पूछा जाता है लिस्ट ऑल दी वर्च्यूज. लेकिन अगर क्वेश्चन एरिस्टोटल पे आता है तो बोला जाता है लिस्ट ऑल दी वर्च्यूज. एंड व्हाट इज फ्रोनेसिस? ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते आते हैं वर्च्यूज के रिस्पेक्ट में. बट एरिस्टोटल और सॉक्रेटिस के केस में मैं नेक्स्ट मास्टर क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा. आज हमारा मेन फोकस है प्लेटो. तो मैंने कॉन्टेक्स्ट सेट किया आपको कि आपको सिर्फ ये 4 वर्च्यूज आज सीख के आगे नहीं चले जाना है, आपको इसका कॉन्टेक्स्ट समझना है कि why virtue is important and what is the goal of developing virtues in human life. So the first line says that Plato's 4 cardinal virtues are for the goal of the morally good life, and those virtues are wisdom, courage, temperance, and justice. So the next question arises, why the knowledge is not mentioned by the Plato? This means the Plato's knowledge, Socrates' knowledge and the Plato's knowledge is very different. Second thing, knowledge and wisdom has a different connotation, and what I am talking about is called as epistemology in the philosophy of Plato. So etymology and epistemology is very very different for each thinker. So you must be very very clear about it. आपके आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं उसकी ये डिमांड है जो मैं आपको समझा रहा हूं. So let's see wisdom. So wisdom, और आपने जो विवेक वर्ड सुना है, हमारे हिंदुइज्म में एक शब्द होता है विवेक. ये विवेक का जागना ही विजडम है, राइट? उसके बाद करेज. करेज मतलब योर स्ट्रेंथ, राइट? हाउ ब्रेव यू आर, आप में कितनी हिम्मत है, आपकी विल पावर. नेक्स्ट इज द टेम्परेंस, आप फेल होने के बाद भी कितने बार कंटिन्यूस ट्राई करते हैं. परसिवरेंस, जिसको अल्टरनेटली हम बोलते हैं, बट प्लेटो ने जो टर्म दिया है वो टेम्परेंस दिया है, तो आप उसी के साथ आगे जाएंगे, उसी को आंसर में लिखेंगे. And the last thing is the justice. So justice is basically, justice of Plato is basically duties oriented. कैसा है? प्लेटो बोलते हैं कि अगर किसी स्टेट में every citizen will deliver justice from his or her inner self, तो पूरी सोसाइटी ही जस्ट बन जाएगी. Which is very different from the justice of Aristotle, क्योंकि एरिस्टोटल ये बोलते हैं कि जस्टिस हमारा राइट्स ओरिएंटेड है, हमें हमारा हक मिलना, अगर मिलता है तो ही वो जस्टिस है. तो यहाँ पे स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है जस्टिस डिलीवर करने में. तो कहीं ना कहीं आपको प्लेटो में झलक मिलती है महात्मा गांधी जी की, और एरिस्टोटल में झलक मिलती है आपको सरदार पटेल जी की, राइट? तो आपको कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और डिफरेंसेस और नुएंसेस को समझना हो. ठीक है? व्हाट एल्स कैन वी राइट सर? सर क्या मैं सिर्फ 4 वैल्यूज लिख के आगे बढ़ सकता हूं, मुझे मार्क्स मिल जाएंगे? 100% मार्क्स मिलेंगे. तो आप अगर विजडम, करेज, टेम्परेंस एंड जस्टिस लिखते हैं, यू विल गेट 2 मार्क्स, नो नीड टू वरी. But if you have time, you can write 1 or 2 lines more. A virtue, according to Plato, is virtue or erite. So erite is very very important. एक एरिट हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में जब हम ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स पढ़ते हैं, बट वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके सिलेबस में नहीं है, तो अभी ये इररिलेवेंट हो जाता है जो 2023 के सिलेबस में था. सो एरिट यहाँ के केस में एक लैटिन वर्ड है जिसका वर्च्यू जो है उसकी मीनिंग है, एंड इट्स अ स्टेट ऑफ द सोल अचीव थ्रू नॉलेज एंड हार्मनी ऑफ इट्स पार्ट्स. अब यहाँ पे प्लेटो जो है पार्ट्स की बात करते हैं, तो एक ह्यूमन बीइंग के वो 3 पार्ट्स बताते हैं. So what I am doing is value enrichment and value addition to your knowledge, besides solving this 2 marker answer. So please take it very seriously and make notes out of it and create synopsis out of it. आपके आंसर राइटिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी. अब यहाँ पे वो बोलते हैं कि हर ह्यूमन बीइंग के 3 हिस्से हैं, हर इंसान 3 चीजों से बना है. सबसे ऊपर इंटेलेक्ट, बीच में स्पिरिट जिसको उन्होंने इमोशन भी बोला है, और सबसे नीचे उन्होंने बोला है कि एपेटाइट. अगर हम इसको मैस्लो की पिरामिड हिरार्की थ्योरी से कंपेयर करेंगे तो सबसे नीचे फूड एंड सेक्स एंड सिक्योरिटी आता है, सेंटर में सोशल वेलबींग आता है, लव आता है, बिलोंगिंग आता है विच इज रिलेटेड टू इमोशन, और ऊपर के 2 आते हैं सेल्फ इंटेलेक्ट, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि इंटेलेक्ट का काम है.
तो कहीं ना कहीं मैस्लो की पिरामिड जो आज 19th और 20th सेंचुरी में आई है वो प्लेटो की थ्योरी से मैच करती है. So that kind of analogy you can draw while writing answers because Maslow की पिरामिड हिरार्की थ्योरी एटीट्यूड की और मोटिवेशन की आपको यूनिट 3-4 में पढ़नी ही पड़ेगी. राइट सो यहाँ पे उन्होंने जो पार्ट्स की बात की है वो ये 3 है और इनमें अगर हार्मनी हो और नॉलेज गेन हो तो वर्च्यूज आना शुरू हो जाते हैं. इसका मतलब वर्च्यूज का ओरिजिन नॉलेज और हार्मनी अमंग पार्ट से शुरू होता है. इसका मतलब नॉलेज इज द पाथ टू वर्च्यूज, नॉलेज इज नॉट वर्च्यू अकॉर्डिंग टू प्लेटो. लेकिन एमपीपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था सोक्रेटिस का, उसमें उन्होंने ये बोला कि वर्च्यू इज नॉलेज, उसको एक्सप्लेन करिए 200 वर्ड्स में, और ये बच्चों के लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है. राइट सो अंडरस्टैंड कि वर्च्यू इज विजडम, करेज, टेम्परेंस एंड जस्टिस अकॉर्डिंग टू द प्लेटो, बट वर्च्यू इज नॉलेज अकॉर्डिंग टू द सोक्रेटिस. इसका मतलब है सोक्रेटिस का नॉलेज प्लेटो का विजडम है. क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? मैं आपको एक रीआइट्रेशन दे रहा हूं कि वर्च्यू इज नॉलेज. अगर सोक्रेटिस के केस में बात हो रही है, ध्यान से सुनना, आपके आने वाले एग्जाम में काम आएगी. वर्च्यू इज नॉलेज अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस, virtue is wisdom, courage, temperance and justice according to Plato. That means knowledge of Socrates is wisdom of Plato. कहानी क्लियर? तो जब आप आंसर लिखेंगे तो इस बात का ध्यान रखना. तो आंसर तो मैं सीधे दे सकता था कि 4 वैल्यूज का नाम बता के आपको आगे बढ़ जाऊं, लेकिन मुझे थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग देनी थी ताकि आप, मैं बहुत से बच्चों को डेली पढ़ाता हूं, ऐसी क्लास लेता हूं, इस तरह की नुएंसेस और इस तरह के बारीक डिफरेंसेस मिस हो जाए एंड वी आर नॉट एबल टू ड्राफ्ट अवर आंसर्स वेरी वेल. क्लियर? सो छोटा सा क्वेश्चन था, 2 मार्कर था, बट आई हैव स्पेंट सम रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. आगे एक और वैल्यू एडिशन चीज बता रहा हूं कि प्लेटो पे अगर क्वेश्चन आएगा तो रिपब्लिक पे सवाल जरूर आएगा. सो रिपब्लिक पे क्वेश्चन पूछा जाएगा. हिज वर्क रिपब्लिक इज सुप्रीम फिलोसॉफिकल अचीवमेंट, दैट इज ट्रू. एक टीमियोस एंड रिपब्लिक उनके सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है. एंड यहाँ पे रिपब्लिक हैज 10 बुक्स व्हिच मेजरली इंक्लूड्स डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द नेचर ऑफ जस्टिस, मोरालिटी एंड मेटाफिजिक्स. आज हम जो भी जानते हैं प्लेटो के बारे में या सोक्रेटिस के बारे में, वो उनकी बुक के थ्रू ही जानते हैं, और उस बुक का नाम है रिपब्लिक. और रिपब्लिक में सबसे ज्यादा डील किया गया है जस्टिस टॉपिक को, एंड उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए, एक जस्ट सोसाइटी, स्टेट तक पहुंचने के लिए हमने मोरालिटी, मेटाफिजिक्स, हर चीज का साथ लिया. तो हर टॉपिक हमको उसमें देखने को मिलता है. सर इसके अलावा हम प्लेटो में और क्या तैयार कर लें जिससे हमारे एग्जाम में थोड़ी हमको हेल्प मिल जाए? तो आप तैयार करिए थ्योरी ऑफ फॉर्म्स एंड आइडियाज एंड व्हाई ही इज एन आइडियलिस्ट. ये 2 क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाइएगा फॉर 2025 मेंस स्टूडेंट्स. आई एम जस्ट गाइडिंग यू. थ्योरी ऑफ फॉर्म्स एंड आइडियाज पे रिसेंटली क्वेश्चन पूछा था, व्हाई सेंस परसेप्शन नॉट नॉलेज अकॉर्डिंग टू द प्लेटो. सो प्लीज keep this in mind. Why is sense perception not knowledge according to the Plato? And this question is related to the theory of forms and ideas. Try to write that. If you don't find it, please message it to me. I will discuss it in the next master class of answer writing. Next is, why is an idealist? He is a utopian. He is an idealist, right? And he is a revolutionary. This is very important. This Plato के लिए सारे terms use किए जाते हैं. तो वो ऐसे क्यों है, ये भी आप तैयार करेंगे तो आपका प्लेटो का टॉपिक बहुत अच्छे से डील हो जाए. Let's move on to the next question. State the 5 elements of Pararth Anuman in Indian context, Indian tradition. अब ये जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि स्टेट द 5 एलिमेंट्स ऑफ परार्थ अनुमान. पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, अगर इंडियन ट्रेडिशन वर्ड बोल दिया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंडियन षड दर्शन की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? इंडियन षड दर्शन की बात हो रही है. अगर ट्रेडिशन इंडियन बोल दिया तो मतलब षड दर्शन से बिलोंग करता है ये कॉन्सेप्ट. ना ही ये हिंदू, ना ही ये जैनिज्म से है, ना ये बुद्धिज्म से है. ये कहीं ना कहीं षड दर्शन, हिंदुइज्म की जो 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, वहां से बिलोंग करता है. बट अगर आपने थोड़ी सी भी स्टडी की है तो आपको पता होगा कि ये न्याय फिलॉसफी से बिलोंग करता है. कहां से बिलोंग करता है? न्याय फिलॉसफी. तो सर ये षड दर्शन में क्या क्या आता है? षड दर्शन में आता है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांत. These are the 6 schools of Indian tradition और इंडियन षड दर्शन और इंडियन फिलॉसफी. अब इसमें से जो न्याय फिलॉसफी है वहां से हमने ये क्वेश्चन देखा, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हमको ये समझना है कि क्वेश्चन आया कहां से. This question has been asked by MPPSC in recent examination. So Indian Shad Darshan is the topic that belongs to the paper 4 unit 1. वहां से क्वेश्चन पूछा गया. अब what is Pararth Anuman in Indian tradition? Let's see what we can write in it. So in न्याय फिलॉसफी परार्थ अनुमान और इन्फ्रेंस, तो इन्फ्रेंस का जो टेक्निकल वर्ड है वो परार्थ अनुमान है, विच इज अकॉर्डिंग टू द न्याय फिलॉसफी.
तो यहां से हम क्या सीख सकते हैं? हम सीख सकते हैं कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेंस का या देख रहे हैं, हमेशा टेक्निकल टर्म्स जो एपिस्टेमोलॉजी है उस फिलॉसफी की, उसको ध्यान में रखिए। जैसे अगर मैं प्रीलिम्स 2025 की बात करूं तो मल्टीपल क्वेश्चंस जो हैं आपके सांख्य फिलॉसफी से पूछे गए हैं। सत्कार्यवाद क्या है? तो ऐसे की टर्म्स आपको हर फिलॉसफी के जान लेने। ये मत सोचिएगा कि मैं उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लूं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए स्पेशली बता रहा हूं कि मैंने इन्फ्रेंस पढ़ लिया तो मैंने परार्थ अनुमान भूल जाऊं, मैंने एट फोल्ड पाथ पढ़ लिया तो मैं अष्टांगिक मार्ग भूल जाऊं। नहीं, टेक्निकल टर्म्स आपके एग्जाम में डायरेक्टली इंग्लिश में पूछे जाएंगे। जैसे कि ये लिखा है, परार्थ अनुमान को इंग्लिश में भी परार्थ अनुमान ही दिया गया है, ना कि इन्फ्रेंस बोला गया है। तो ये 5 एलिमेंट्स ऑफ इन्फ्रेंस नहीं पूछ रहा है, 5 एलिमेंट्स ऑफ परार्थ अनुमान पूछ रहा है इन इंडियन ट्रेडिशन। तो पहली लर्निंग ये हो गई कि हमको जब भी टॉपिक पढ़ना है तो उसके की टर्म्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उसका ट्रांसलेशन नहीं करना है, क्योंकि थ्योरी पे क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। चलिए, सो लेट्स सी कि हमको ये तो पता चल गया सर कि ये न्याय फिलॉसफी से बिलोंग कर रहा है, तो अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स जो परार्थ अनुमान के हैं, पहला है प्रतिज्ञा यानी प्रपोजिशन, दूसरा है हेतु यानी रीजन, तीसरा है उदाहरण यानी एग्जाम्पल, फोर्थ है उपनयन यानी एप्लीकेशन, एंड लास्ट है निगमन यानी कॉन्क्लूजन। राइट, कहने का मतलब है कि सबसे पहले जब आप थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंस पे पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले एक प्रोपोजिशन देते हैं कि ऐसा हुआ है, आपने एक स्टेटमेंट दिया, फिर आप उसका रीजन देते हैं और फिर उसके बाद उसके उसी से मिलता जुलता एनालॉगी ड्रॉ करने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। उस एग्जाम्पल की मदद से आप एक एप्लीकेशन करते हैं अपने करंट केस पर, जो आपके यूज केस आपके हाथ में है, करंट जो प्रॉब्लम आपके हाथ में है, और अल्टीमेटली आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि जो प्रोपोजिशन मैंने दिया वो सही। सर आपने जिस आसानी से इस चीज को बताया, इतनी आसानी से कि हम नहीं समझ पाए, तो हमको एक एग्जांपल दे देते तो अच्छा रहता। तो लेट्स सी व्हाट वी कैन राइट एज एन एग्जांपल। सो फॉर द वैल्यू एडिशन आई हैव ब्रॉट दिस एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। सो लेट्स सी, तो यहां पे आपने ऑल 5 एलिमेंट्स को समझने के लिए हमने लिखा कि प्रतिज्ञा यानी दिस हिल हैज अ फायर। जैसे आप किसी पहाड़ पे आग लग गई है, फॉरेस्ट फायर का केस आप सब जानते हैं, पहाड़ में आग लग जाती है, जंगल में आग लग जाती है, तो फॉरेस्ट में आपको धुआं उठता हुआ दिखता है। अब जैसे ही आपको फायर दिखा, स्मोक दिखा, तो आपने पहला बोला कि दिस हिल एज फायर, क्योंकि आपने धुआं देखा, स्मोक देखा। तो आपने पहला प्रपोजिशन देखा कि जरूर उसमें आग लगी है। लेकिन ये तो आपका प्रपोजिशन था, आप इसका रीजन क्या देंगे? तो रीजन आप देंगे हेतु में, बिकॉज इट हैज स्मोक। क्यों? क्योंकि स्मोक दिख रही है, इसलिए वहां पे द हिल हैज फायर। सर इसके आगे मुझे बताइए उदाहरण कि आपने ये लॉजिक कहां से लगाया कि अगर धुआं दिख रहा है, स्मोक दिख रही, तो इट इज डेफिनेट दैट देयर मस्ट बी फायर। So you have drawn an analogy from an example in your kitchen. Then wherever there is a smoke, there is a fire, and we have seen that in kitchen. चूल्हे में जब भी आप देखते हैं धुआं उठता है तो नीचे आग होती है, इसलिए हमने किचन से एनालॉगी दी कि किचन से कंपेयर किया फॉरेस्ट की सिचुएशन को, हिल की सिचुएशन को, तो ये हो गया एग्जाम्पल। सर इस एग्जाम्पल का एप्लीकेशन क्या होगा? तो वो होगा उपनय। तो यहाँ पे हिल इज सच एन एग्जाम्पल, मतलब उस हिल किस तरह से एक्ट कर रहा है? किचन की तरह एक्ट कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपके एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं, दोस क्वेश्चंस डिमांड वेरी टेक्निकल आंसर्स। आप कोई जेनेरिक आंसर्स नहीं लिखेंगे अगर आपको मार्क्स अच्छे फेच करने हैं तो। बी रेडी विद दैट एंड कीप दैट इन माइंड। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि बस लास्ट मिनट में पन्ने पलट के चले जाएंगे और मींस में अच्छे नंबर ले आएंगे, वो नहीं होगा। सो बी अलर्ट। लास्ट स्टेज क्या रह जाती है एप्लीकेशन के बाद? निगमन, कंक्लूजन तो ड्रॉ कर दें। तो देयरफॉर द हिल हैज फायर। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की थी कि द हिल हैज फायर, दैट वाज माय प्रपोजिशन। उसके बाद मैंने उसका रीजन दिया, इसीलिए क्योंकि मुझे धुआं दिख रहा है यानी स्मोक। फिर मैंने बोला सर ऐसा आपने क्यों रीजन दिया? क्योंकि मैंने किचन में भी देखा है, जहां चूल्हा जलता है वहां आग और धुआं साथ कनेक्टेड है, इसीलिए मैंने बोला हिल या फॉरेस्ट की सिचुएशन भी किचन की तरह हो रही है कि फॉर स्मोक है तो फायर होगी, और इसलिए मैंने इसको लॉजिकली इन्फ्रेंस निकाला कि द हिल हैज फायर। तो ये जो एग्जाम्पल है, दिस एग्जाम्पल शोज द 5 एलिमेंट्स ऑफ द परार्थ अनुमान। और देखिए कहीं ना कहीं इसमें अनुमान है, दैट इज द इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं। सो दैट इज द क्वेश्चन अबाउट द न्याय फिलोसफी। And we all know that in the 6 schools of the Indian Shad so Sakya and Yoga are in combination, Nyaya and Vaisheshika are in combination, and Mimamsa and Vedant या उत्तर मीमांसा एंड पूर्व मीमांसा are in combination। इन चीजों का ध्यान रखना। इसमें से एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, एक सांख्य है तो एक योग है, एक न्याय है तो एक वैशेषिका है, एक मीमांसा है तो एक वेदांत।
राइट? तो इन फिलॉसफीज को कॉम्बिनेशन में समझा जाता है, राइट? तो जब भी आप पढ़ें इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। दैट इज द नेशनल इंटरेस्ट इज इनहेरेंट इन इट्स सिक्योरिटी, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। देखिए ये क्वेश्चन 7 मार्कर का क्वेश्चन है और इसको 60 वर्ड्स में हमें आंसर करना है। अब इस क्वेश्चन में ये पहले तो मैं ये बता दूं कि ये पेपर 4 की यूनिट 2 जो न्यू एडिशन है 2024 में, वहां से ये टॉपिक हमने पिक किया है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब ये जो नेशनल इंटरेस्ट टॉपिक है, नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल सिक्योरिटी पेपर 4 के यूनिट 2 के बुलेट नंबर 2 से बिलोंग करता है। और इसके बाद आपके सिलेबस में आता है आर्म्ड फोर्सेस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज, राइट, एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो नेशनल इंटरेस्ट क्या है? जब भी हम इंटरनेशनल स्फीयर में अपने इंटरेस्ट पुट फॉरवर्ड करते हैं तो उसे हम नेशनल इंटरेस्ट बोलते हैं। हमारी ग्रोथ के लिए जो हमारी प्रायोरिटीज हैं उन्हें हम नेशनल इंटरेस्ट बोलते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या हम अपने ग्रोथ के लिए सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो आप आंसर देंगे नो। नो सर, पहले सिक्योरिटी देन ग्रोथ। जैसे कि मैस्लो पिरामिड थ्योरी अगर आपने पढ़ी है, तो पिरामिड में बेस में होती है सिक्योरिटी। कैसी सिक्योरिटी? फिजिकल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, सेक्स सिक्योरिटी। उसके बाद फिर हम एस्पिरेशन शुरू करते हैं कि हमारे लव इंटरेस्ट क्या है, हमारी सोशल वेलबींग इंटरेस्ट क्या है, फिर हमारे इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट क्या है, हमारे अचीवमेंट इंटरेस्ट क्या है, लाइक दैट। सो हायर इंटरेस्ट से पहले हमें क्या देखना होता है? सिक्योरिटी देखनी होती है। तो ये तो एग्जाम्पल दिया मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग का, बट आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि नेशनल इंटरेस्ट इज इनहेरेंट इन इट्स सिक्योरिटी। कहने का मतलब नेशनल सिक्योरिटी में ही नेशनल इंटरेस्ट इनहेरेंट होते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन को सर अप्रोच कैसे करें? पहले तो हमें यही नहीं आता कि नेशनल इंटरेस्ट कैसे लिखें और नेशनल सिक्योरिटी कैसे लिखें। तो पहले तो मैं आपको एक सिलेबस की झलक दे रहा हूं। एक सिलेबस की झलक दे रहा हूं कि आपका बुलेट नंबर 1 ऑफ, पहले तो पूरी यूनिट का नाम है नेशन बिल्डिंग एंड मॉरल कॉन्सेप्ट्स। तो नेशन बिल्डिंग में जो टॉपिक्स आते हैं, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इट्स अ फ्लो चार्ट, नेशनल पावर, नेशन, नेशन स्टेट एंड नेशन। उसके बाद बुलेट नंबर 2 में जो टॉपिक्स है, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल कैरेक्टर। अब इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है इंटरेस्ट और सिक्योरिटी को कनेक्ट करके। तो पहला काम किसी भी एस्पिरेंट के लिए ये होना चाहिए कि पहले आइडेंटिफाई करें कि ये क्वेश्चन आया कहां से और ये पूछना क्या चाहता है। जब हम इस दिशा में सोचेंगे तभी हम सीख पाएंगे कि हम इसे लिखना कैसे है। अब अगर यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की मैं बात करूं, तो नेशनल सिक्योरिटी के मल्टीपल डायमेंशंस हैं। वो डायमेंशंस क्या हैं? लेट्स सी विथ अ न्यू फ्लो चार्ट। देखिए इस फ्लो चार्ट में पहला टॉपिक है ज्योग्राफी। सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी में हमको हमारी टेरिटरीज और बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना होता है, यानी फ्रंटियर्स को प्रोटेक्ट करना होता है। आप सबको पता है कि इंडिया पाकिस्तान, इंडो चाइना, इंडो बांग्लादेश, इंडो भूटान, इंडो नेपाल एंड इंडो म्यांमार, दीज आर सम ऑफ द बॉर्डर्स ऑन द टेरिटोरियल फ्रंट्स। अदर देन दैट वी हैव मरीन बॉर्डर्स, मरीन बाउंड्रीज, जहां इंडियन नेवी हमारा ध्यान रखती है। लेकिन जहां पे भी टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं, वहां पे हमारी कौन कौन सी फोर्सेज हैं जो बॉर्डर पे हमारा ध्यान रखती हैं? आर्मी की तो पोस्टिंग होती है, बट बॉर्डर पे बीएसएफ ध्यान रखता है, आईटीबीपी ध्यान रखती है, सशस्त्र सीमा बल ध्यान रखती है, आसाम राइफल्स ध्यान रखती है। ये सारी की सारी फोर्सेस हमारा ध्यान रखती हैं बॉर्डर का, उनकी सिक्योरिटी का। बट ज्योग्राफी की टेरिटोरियल सिक्योरिटी सबसे पहली सिक्योरिटी है जो हमारी प्राइम कंसर्न होता है। तो यहां पे देख सकते हैं आप कि ज्योग्राफी के साथ साथ हमारी बाउंड्रीज, उसके बाद फिर हम आते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। I am giving you a little bit of background before answering this question because this question is very important और यहाँ पे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी। एंड द पॉइंट्स और द फ्लो चार्ट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन मस्ट बी कॉपीड इन योर नोट्स। इसको उतार लीजिएगा और इसको सीधे आंसर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इनहेरेंट सिक्योरिटी से आएगा या इंटरेस्ट से आएगा, तो इसको सीधे कॉपी पेस्ट करना, नंबर अच्छे आएंगे ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद आपके पॉलिटिकल ट्रेडिशन, क्या आप डेमोक्रेसी को बचा पा रहे हैं? अगर इंडिया के केस में हम बात करें तो क्या आप डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, या कोई पॉलिटिकल सिस्टम में कूप हो सकता है? इंडिया में क्या ऐसी क्रांति आ सकती है? उसकी सिक्योरिटी हमें रखनी है। पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, द वे इलेक्शंस आर कंडक्टेड, ये सब चीजें डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना है। हमारे इंडिजिनस एनवायरनमेंट यानी कल्चरल एनवायरनमेंट, कम्युनल, सेक्युलर, ये सारे एस्पेक्ट्स करने हैं। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में भी हमको अपने आप को सिक्योर करना है। हमारे ह्यूमन एलिमेंट्स यानी पॉपुलेशन का हमको ध्यान रखना है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को हमको सिक्योर करना है। एंड ओवरऑल इंटरनेशनल एरिना में हमको डिप्लोमेसी के थ्रू हमारी नेशनल सिक्योरिटी को आगे बढ़ाना है। राइट, सो डिप्लोमेसी इज द मीन टू प्रमोट अवर नेशनल सिक्योरिटी। अब इतने सारे डायमेंशंस जो नेशनल सिक्योरिटी के हैं, इसी डायमेंशन में जैसे आपने देखा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट, बाउंड्रीज का प्रोटेक्शन, वही तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट हो जाते हैं।
सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए जो हम प्रायोरिटी सेट करते हैं वही हमारे नेशनल इंटरेस्ट हो जाते हैं। सर तो ये बता दीजिए कि कैसे डिफाइन करेंगे नेशनल इंटरेस्ट। देखिए नेशनल इंटरेस्ट जो है इट कैन बी डिफाइंड एज द डिमांड्स गोल्स इंटरेस्ट एंड क्लेम्स बाय अ नेशन टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व एंड डिफेंड इट्स रिलेशंस विद अदर नेशन स्टेट्स। तो नेशनल इंटरेस्ट हमारी फॉरेन पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में दिया जाता है कि हमारे इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट क्या है और उन्हें प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। अगर फॉर एग्जांपल बताऊं कि यहाँ पे रशिया का और यूक्रेन का वॉर हो रहा था तो हमारे इंटरेस्ट क्या है। जैसे आपने हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी हैं, तो वो किस तरह से यूरोपियन मीडिया में बात करते हैं आपने सुना होगा, कभी रील देखी होगी, कभी उसका शॉर्ट्स देखे होंगे यूट्यूब पे, कभी वीडियो देखा हो। ही एक्ट्स वेरी स्मार्टली एंड ही ऑलवेज सेज दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द नेशनल इंटरेस्ट, right? And there are no permanent friends and no permanent enemies in the international politics. जिसका जैसा नेशनल इंटरेस्ट है हम वैसे संबंध बनाते हैं। तो वैसे ही हम बोल रहे हैं कि नेशनल इंटरेस्ट कैन बी डिफाइंड एज डिमांड्स गोल्स इंटरेस्ट एंड क्लेम्स बाय अ नेशन टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व एंड डिफेंड इट्स रिलेशंस इन द विद द अदर नेशन स्टेट्स। सर नेशनल सिक्योरिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ स्टेट टू केटर फॉर द प्रोटेक्शन एंड डिफेंस ऑफ इट्स सिटीजनरी। साथ ही साथ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी इज डिटरमाइंड बाय इट्स इंटरनल स्टेबिलिटी एंड जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो इसका मतलब सर नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन में ही उसकी स्टेबिलिटी यानी इंटरनल नेशनल इंटरेस्ट एज वेल एज जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट यानी एक्सटर्नल नेशनल इंटरेस्ट इनहेरेंट है। यस, एंड दैट्स व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नेशनल इंटरेस्ट इज द सब कैटेगरी ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी। क्या ये सही है? तो इसको एक्सप्लेन करिए। यस, इट इज 100% राइट। नेशनल इंटरेस्ट ही हम डिफाइन इस बात पे करते हैं कि हमारा नेशन सिक्योर रहे और फिर ग्रो करे। ग्रोथ पहले नहीं होती, पहले सिक्योरिटी होती है, इसीलिए इट इज इनहेरेंट, राइट। तो सर इसमें हम लिख क्या सकते हैं? इसमें लिखेंगे कि नेशनल इंटरेस्ट, अब जो एग्जाम में लिखा जाएगा मैं वो आपको बता रहा हूं। सो नेशनल इंटरेस्ट इनकम्पासेस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड कल्चरल इंटीग्रिटी एंड इट रिलायज फंडामेंटली ऑन द सिक्योरिटी एंड दैट्स व्हाट द नेशनल इंटरेस्ट इज डिफाइंड कि फंडामेंटल्स ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज द सिक्योरिटी। उसके बाद नेशंस एबिलिटी टू सेफ गार्ड इट्स सिटीजंस, जो कि अभी हमने लास्ट पेज डेफिनेशन में भी देखा, and the territory and sovereignty underpins its capacity to pursue broader goals, and the weak security exposes vulnerability, destabilizing the national interest। ठीक है, कहने का मतलब है कि नेशन जिस तरह से अपने सेफगार्ड कर सकता है सिटीजंस को, टेरिटरी को और सोवरेनिटी को, ये उसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए नेशनल एबिलिटी कहलाती है। और वीक अगर सिक्योरिटी होगी तो हम वल्नरेबल हो जाएंगे, तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट भी डिस्टेबलाइज हो जाएंगे और उनकी प्रायोरिटी भी बदल जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग जितना नेशन होता जाएगा, सिक्योर जितना नेशन होता जाएगा, उस हिसाब से उसके नेशनल इंटरेस्ट भी बदलते चले जाएंगे, क्योंकि फिर उस हिसाब से वो एक सॉफ्ट पावर से हार्ड पावर बनेगा और फिर नेशनल पावर के मल्टीपल कंपोनेंट्स प्ले में आ जाएंगे। बात समझ में आई? आज के मैंने आपको जितने 3 क्वेश्चंस लिखवाए वो तीनों का आपको ध्यान रखना है। और मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा रहा हूं व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे। प्लेटो की 4 कार्डिनल वर्च्यूज ध्यान से सुनना। वो है विजडम, करेज, टेम्परेंस एंड जस्टिस। वर्च्यू को डिफाइन कैसे किया है? द स्टेट ऑफ द सोल अचीव थ्रू द नॉलेज, हार्मनी एंड ट्रेडिशन। प्लेटो की रिपब्लिक पे जरूर क्वेश्चन का आंसर लिखना एक बार। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स एंड आइडियाज, व्हाई ही इज एन आइडियलिस्ट। न्याय फिलॉसफी में परार्थ अनुमान एक 5 मेंबर्ड सिलोगिज्म होता है, जिसमें प्रपोजिशन, रीजन, एग्जाम्पल, एप्लीकेशन एंड कंक्लूजन। इंग्लिश में मत लिखना आंसर, हेतु, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण एंड उपनय एंड निगमन लिखना। साथ ही साथ अगर 7 मार्कर आ जाए तो इस एग्जाम्पल के साथ आंसर लिखेंगे तो मार्क्स और अच्छे मिलेंगे। नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी पे आ जाए तो डायमेंशंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी पूछेगा तो आंसर मैंने आपको यही बता दिया, एक नए क्वेश्चन का। इस डायग्राम को जरूर बनाइएगा। अगर 11 मार्कर आ जाए तो भी ये डायग्राम जरूर ड्रॉ करिएगा, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। साथ ही साथ नेशनल इंटरेस्ट पे 2 मार्कर आ जाए तो ये डेफिनेशन लिखिए, 100% 2 मार्क्स मिलेंगे। नेशनल सिक्योरिटी पे क्वेश्चन 2 मार्कर आ जाए तो ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, 2 मार्क्स मिलेंगे। एंड इनहेरेंट पे क्वेश्चन आ जाए या कैसे वो एक दूसरे से लिंक है, उस पर आप ऐसा आंसर लिख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द टुडे सेशन। एक बार फिर से बोल रहा हूं, जिसको भी 2026 के लिए सीरियसली तैयारी करनी है, जो एक बार में एग्जाम क्लियर करना चाहता है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लाइफ में हम सब सोचते हैं कि एक बार में करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा टच छूट जाता है, हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है। तो इस टेस्ट सीरीज के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेंटरशिप के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन प्रोसेस को सही दिशा देके गोल तक पहुंच सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द टुडे सेशन, राइट।
मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज टेक केयर, कीप स्टडिंग हार्ड एंड ऑलवेज गोल फॉर द हाईएस्ट, दैट इज रैंक 1। थैंक यू वेरी मच।